Assalamu alaikum dear students, and today is lecture number 20 of class inter subject mathematics. So in lecture number 19 where we studied about implicit functions and we have solved problems of dead functions. So now in this lecture number 20, we are going to start a new topic, differentiation of a parametric function, parametric equations. अब इस लेक्चर में हम parametric equations होती हैं उनके डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर होता क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, तो वो स्टडी करेंगे। समटाइम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले फंक्शन के आपको मालूम होगा कि फंक्शन हम पढ़ क्या रहे हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज़ नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसका मकसद ये हुआ कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल y है इज़ नॉट गिवन, वो नहीं मिला होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन x के। रादर द बोथ वेरिएबल्स आर गिवन एज अ फंक्शन, दोनों एक अलग-अलग फंक्शंस की सूरत में गिवन होंगे ऑफ अनदर, एक दूसरे के। दैट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर, हम उसको पैरामीटर कहेंगे। आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे दोनों फंक्शंस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अलग-अलग होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। So both variables are given as a function of another variable. So let x is equal to f of t and y is equal to f of t. X is a dependent function, and y is also a dependent function. F of t and f of t, these are different than function. T is an independent function. So both x और y are related to t, दोनों x और y t से related हैं, बिल्कुल हाँ। और x और y are also related to each other, x y दोनों आपस से related हैं। Both y can be looked upon as a function of x as well as x. दोनों functions both y और x दोनों function हैं t के और x के, as well as x as a function of y. So we find dy by dx as follows. हम dy by dx को इस तरह भी लिख सकते हैं, dy dx is equal to dy upon dt dot dt upon dx. So this is called chain rule. This is a function, parametric functions. सो द पैरामेट्रिक फंक्शन की इस तरह से अगर कोई भी पैरामेट्रिक दो फंक्शंस गिवन होंगी तो दोनों फंक्शंस की अलग-अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो दीज काइंड्स। अनदर टॉपिक इज़ हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव का मकसद है एक डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स। तो एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स किससे होंगे, एक डिफरेंशिएशन होगी, उसके बाद दूसरी डिफरेंशिएशन, तीसरी डिफरेंशिएशन। these differentiations is called higher differentiation. Let f be a function differentiable everywhere in a set A. Then we have x एक वेरिएबल है L. Let f A goes to R, define a function f of x is equal to derivative of x for all x if A differentiable on A belongs to A. d upon dx f of x is equal to derivative of df of 2. इसकी एक डेरिवेटिव हो गई, उसके बाद अगर दूसरी डेरिवेटिव लें तो इसको हम डबल डॉट भी कहेंगे, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं, डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। In usual case, now we can be written as d upon df. डबल डेरिवेटिव की ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगी। ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ a is equal to डेरिवेटिव d power cubed y into dx cube. So this is called the higher derivative. This is the third order derivative of a function, and similarly we can define the derivative of fourth and higher order derivatives. So in general, nth order derivative d power n divided by d x power n, this is called the nth derivative of a function at a point x if it exists. अगर ये exist होगी तो इसको function of nth derivative कहेंगे. So
Now on parametric question there is exercise 4.4. We are going to start solve this exercise. If function f is defined parametrically, find dy by dx at the specific point in the cases. हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है यहाँ पे दो फंक्शंस. अब हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है. नंबर वन इज गेट x is equal to 80 square minus y is equal to 280, 8t is equal to 1. दोनों t is equal to 1 पे हमें फाइंड करना है. एक x का फंक्शन है, दूसरा y का. तो सबसे पहले x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे. x is equal to 80 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से दोनों की डेरिवेटिव, क्योंकि डिपेंडेंट यहाँ पे फंक्शन है वो है t फंक्शन. So differentiable with respect to t, dx upon dt is equal to a d upon dt square. So dx upon dt is equal to 280. यूजिंग चेन रूल के हिसाब से हल करेंगे. dy by dx is equal to 2a divided by 280. So also this is first derivative of x की डेरिवेटिव x वाले फंक्शन की इस तरह डेरिवेटिव होगी. अब y वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे. y is equal to 280. डिफ्रेंसिएशन dy by dt is equal to dy upon dt is equal to 2a. अब बाय यूजिंग चेन रूल के हिसाब से dy by dx is equal to 2a upon 280, क्योंकि dy बराबर है 2a के और dx बराबर है 280 के. dy upon dx is equal to 1 upon t. By putting t is equal to 1, क्योंकि क्वेश्चन में t is equal to 1 is given, dy by dx is equal to 1 upon 1 is equal to 1. So again इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम में x is equal to cos t, y is equal to sin t at function at a point minus 1 upon 2 square root of 3 upon 2. सो अगेन इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इक्वेशंस को हम डेरिवेटिव करेंगे. फर्स्ट की साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी आ जाएगा y अपॉन एक्स के. सो साइन अपॉन टी बराबर है टेन के. टेन इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स के. सो टेन टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. वाई की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे. तो टेन इनवर्स माइनस 3, तो वो बराबर होता है टी इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू पाई बाय माइनस पाई बाय 3. सो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई अपॉन डी एक्स. सबसे पहले हमने वैल्यू पुट किया. अब डिफ्रेंसिएशन कॉस टी की होगी डी अपॉन डी एक्स टी की माइनस साइन टी, इसी तरह डी वाई अपॉन डी टी की कॉस टी. सो अब डी वाई बाई डी एक्स फार्मूले के हिसाब से चेन रूल के हिसाब से डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन टी. तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉट टी. तो टी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3. पाई बाय 3 पे हम अगर वैल्यू फाइंड करें कॉट की तो वो बराबर आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसी तरह नंबर 3 क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा. तो इसी तरह डी एक्स अपॉन डी थीटा के हिसाब से अब करेंगे. a कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. सो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा. इसी तरह डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे b इंटू साइन स्क्वायर थीटा की 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. आप चेन रूल के हिसाब से हल करेंगे. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, वो बराबर आ जाएगा 2b अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू कॉस थीटा. कैंसिल हो जाएगा कॉस एंड साइन और 2 में कैंसिल हो गया. जवाब आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो another example, another question number 7 is here. Determine the second derivative of polynomial. higher order derivative पहले टॉपिक पढ़ा है, उसका एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज 4.5 में. तो रियल टू रियल यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. यहाँ पे पॉलिनॉमियल गिवन है. तो पॉलिनॉमियल सबसे पहले 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे डी बाई डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब के हिसाब से करेंगे 4x स्क्वायर और 3x की. इसकी आसानी से 2x की हो जाएगी 2x क्यूब हो जाएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू पावर इसका आगे आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट टर्म की x की 0 हो जाएगी, क्योंकि सॉरी कांस्टेंट टर्म की डी अपॉन डी एक्स 1 की 0 हो जाएगी और डी अपॉन डी एक्स एक्स की हमेशा डेरिवेटिव 1 होती है.
तो इसी तरह जो जवाब आएगा पॉलिनॉमियल फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो जवाब आएगा dx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसी तरह सेकंड डिफरेंशियल सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे d अपॉन डी एक्स, पी डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ x। इस तरह जो फंक्शन अभी मिला है उसका अगेन डेरिवेटिव करें, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 t अपॉन डी एक्स इंटू 3। सो कांस्टेंट है लास्ट वाला, इसकी 0 हो जाएगी और x वाले की 1 हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और x स्क्वायर की, तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 8 1 प्लस 0। सो जो जवाब आएगा सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12x minus 18. I hope, dear students, you have understand this lecture. Remaining problem of this exercise 4.4, you have to solve. Thank you, dear students.